دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین اکرام، آج 1 نومبر ہے اور آج سے پاکستان کی سیاست میں اعصاب کی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور آج سے پاکستان کی سیاست میں سپر اوور کا کھیل شروع ہو چکا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اور آج عمران خان کے ہی لانگ مارچ کا 5واں روز ہے، اور یہ 5واں روز جو ہے وہ گجرانوالہ سے شروع ہوا ہے۔ تو آج کی ٹاپ سٹوریز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، ٹاپ بریکنگ نیوز جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں، جنہوں نے تہلکہ مچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اپنا دھرنا جو ہے وہ GHQ کے سامنے باقاعدہ طور پر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے وہ خطرناک دوراہے پر چلتی جا رہی ہے، یعنی کہ عمران خان نے تمام کشتیاں جلا دی ہیں، اپنا آخری کارڈ پھینک دیا ہے، جس نے اس وقت ہلچل مچائی ہوئی ہے کہ کسی حکومت سے بات نہیں ہوگی، اب سیدھا GHQ جائیں گے اور GHQ والوں کے ساتھ اب بات کی جائے گی۔ اس حوالے سے امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ عمران خان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا، اور اس کے اوپر GHQ کیا سوچ رہا ہے، راولپنڈی کی صورتحال کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر فوج کیا کرنے جا رہی ہے، سپر سالار کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ سابق آرمی چیف پرویز مشرف صاحب نے نومبر کے اندر ہی پاکستان میں ایمرجنسی کا نفاذ کیا تھا، تو بالکل اسی طرح سے پاکستان کی صورتحال اب 1999 جیسی بنتی چلی جا رہی ہے، اور نومبر بھی شروع ہو چکا ہے، حالات بھی خراب ہو چکے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ نے GHQ سے کون سا ہنگامی الرٹ جاری کر دیا ہے، جس نے اس وقت طبلِ جنگ بجا کے رکھ دیا ہے۔ اس حوالے سے امپورٹنٹ تفصیلات ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ 10 نومبر تک ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اور بالخصوص راولپنڈی میں کیا ہو سکتا ہے، یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور نواز شریف نے بھی جنرل باجوہ کو کھلی دھمکی دینا شروع کر دی ہے۔ اس وقت حکومت بمقابلہ جنرل باجوہ، اور یہ فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ اور چوتھی خبر پر جو آج ہم بات کریں گے، ارشد شریف قتل کیس، یہ ایک نئے موڑ پر داخل ہو چکا ہے، نئے کردار اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ فیصل وابڈا نے اس وقت کیا انکشاف کر دیا ہے، اس حوالے سے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتے رہیں۔ یہ سب سے پہلی خبر آپ سکرین کے اوپر دیکھیں کہ شہباز گل جو ہیں ان کا نام ECL میں شامل کر لیا ہے۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد شہباز گل کا نام ECL میں ڈالا گیا، تو اب شہباز شریف نہ بیرونی زمینی جگہ سے بیرون ملک جا سکتے ہیں، اور نہ ہی ایئرپورٹس کے ذریعے پاکستان سے بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ اس وقت حکومت نے جناب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا نام ECL میں ڈالنا شروع کر دیا ہے، جبکہ اپنے لوگ ان کے یہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو کیا خوف تھا اور ان کی کیا لڑائیاں چل رہی ہیں، اور اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں جس کی وجہ سے حکومت کے لوگ جو ہیں پاکستان سے بھاگ رہے ہیں۔ اور دوسری خبر جو ہے وہ آپ سکرین کے اوپر دیکھیں کہ تحریک انصاف نے لانگ مارچ کا نیا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ پاکستان نے نئے شیڈیول میں صرف جیلم تک کا پلان جاری کیا ہے، جیلم کے بعد کیا ہوگا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں ذرا آپ کے سامنے یہ نقشہ بھی رکھ دیتا ہوں جس میں بتایا گیا ہے کہ اتوار کو پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ جو ہے وہ جیلم پہنچے گا، اور عمران خان آج چند دا قلعہ سے مارچ شروع کر کے گوندراوالا باغ پر ختم کریں گے۔ لانگ مارچ کل ہندی بائی پاس سے شروع ہو کر گکھڑ منڈی پر اختتام پذیر ہوگا، اور بتایا یہ گیا ہے کہ جمعرات کے روز لانگ مارچ کی طرف سے وزیرآباد سے گجرات تک کا سفر طے کیا جائے گا۔ جمعے کو لانگ مارچ گجرات سے لالا موسیٰ پہنچے گا، اور ہفتے کے روز لانگ مارچ کھاریاں سے ہو کر سرائے عالمگیر تک پہنچے گا۔ یعنی کہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں انہوں نے اسلام آباد تک عمران خان کے پہنچنے سے پہلے معاملات طے کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ عمران خان کو بیک ڈور چینلز پر کامیابیاں ملتی ہوئی اس وقت نظر آ رہی ہیں، جیسے اعتزاز احسن صاحب نے اپنا ایک لانگ مارچ کیا تھا، اور وہ لانگ مارچ تھا وکلا تحریک اور جج بحالی جو ایک تحریک چلائی گئی تھی، اور جیسے اعتزاز احسن جو ہیں وہ جناب اپنا آدھا سفر انہوں نے طے کیا تھا، تو ان کو راستے میں ہی جنرل کیانی صاحب کی ٹیلی فونک کال آ گئی تھی، تو پھر جناب ان کے معاملات طے ہوئے تھے اور ان کو بہت بڑی کامیابی مل کی تھی، ان کے جج کو بحال کر دیا گیا تھا۔ اور آج اعظم سواتی صاحب نے بھی ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی ہے، دوسری پریس کانفرنس تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نام لے کر کہا کہ جنرل باجوہ میرے پر میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ میرے پر بہت زیادہ تشدد ہوا ہے، اور جب مجھے لے کر جا
रहे थे, इन्होंने मेरे पर तशद्दुद किया और जब मैं चीख रहा था, मेरी चीखों की वीडियोस इन्होंने बनवाई, तो उन्होंने कहा कि मैं एजेंसी से इंसाफ का मुंतज़िर हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ का मुंतज़िर हूं। तो अब आ जाए नाज़रीन इकराम, अरशद शरीफ कत्ल केस जो है वो नए मोड़ पर दाखिल हो चुका है और कातिलों का जो नाम सामने आ रहा है उसने भांडा फोड़ के रख दिया, इस वक्त भौचाल मचा दिया है। सबसे पहले तो ये कि मैंने कल आपको बताया था कि अरशद शरीफ जो कत्ल केस है उसमें कमीशन बनाया गया हुकूमत की जानिब से, IB के उसमें लोग थे और साबिक चीफ जस्टिस उसमें शामिल किया गया, लेकिन उनका कोई क्रिमिनल इस तरह की तहकीकात के अंदर उनका कोई बड़ा नाम नहीं है जिनको शामिल किया गया था, तो हुकूमत के अंडर ही इन्वेस्टिगेशन होना थी। तो अरशद शरीफ की वालदा साहिबा ने इस कमीशन को हर तरह से मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस कमीशन की रिपोर्ट को तस्लीम नहीं करूंगी और जब तक यूनाइटेड नेशंस या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस कत्ल की तहकीकात नहीं करता, मैं इस तहकीकात पर बिलीव नहीं करूंगी। यानी कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए। तो इसने भी नया पिंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया है और हमारे ज़राए जो है इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि पिंडी की ताकतवर शख्सियत ने अरशद शरीफ की फैमिली से मिलने के लिए बड़ा दबाव डाला था, लेकिन अरशद शरीफ की मां ने पिंडी की ताकतवर शख्सियत से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। मुबैना तौर पर ये मेरे ज़राए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। तो अब लेट्स सी के मामला जो हैं वो किस जानिब बढ़ते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, फैसल वावडा जिनको हाल ही में लॉन्च किया गया था अरशद शरीफ की तदफीन से पहले, और ये खुलकर सामने आए और ये जिस तरह से इनको लॉन्च किया गया था, मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद की जो डर्टी हैरी है उन्होंने फैसल वावडा को मुबैना तौर पर उनकी गंदी वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल किया था। तो जिसके बाद फैसल वावडा जो है वो लॉन्च हो जाते हैं। फैसल वावडा ने अब दोबारा से ये इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया है। लो जी, अब वही बात के अपने गंदे घपले झाड़े जा रहे हैं और इमरान खान के ऊपर एक कत्ल का गंद फेंकने की कोशिश की जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इसको नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि जिन्होंने अरशद शरीफ के कातिलों का नाम पूछना है वो अरशद शरीफ की माँ से जाकर पूछ सकता है, वो आपको साफ साफ बताएगी। तो आप बात है कि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को खुली धमकियां देना शुरू कर दी है और मामला जो है वो खतरनाक दुराहे पर पहुंच चुके हैं। फाइनल राउंड जो है पाकिस्तान की सियासत में शुरू हो चुका है। सबसे पहले खबर मैं आपको बता देता हूं कि फवाद चौधरी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवाने पर राजी हो चुकी थी, लेकिन नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में 1 साल से पहले इलेक्शन हो, ये हुकूमत चाहे अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे। आईनी तो नहीं की गई, गैर आईनी तौर पर हुकूमत आई है, तो आईनी तौर पर तो ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकती और ना इस हुकूमत पर ये हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत हो सकती थी। तो उस सब के बाद मैंने भी आपको ये 3 दिन पहले खबर दे दी थी जब बैकडोर मुज़ाकरात की खबरें चलना शुरू हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इनके दरमियान मुज़ाकरात हुए, तो ये 6 माह के अंदर अंदर मुज़ाकरात के अंदर ये बात तय हो गई थी कि 6 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने दूंगा। तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने उसकी धमकी दी थी। तो अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ ने ये बाकायदा तौर पर अपनी पार्टी को ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि अगर हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा जाता है, हमारी हुकूमत को तोड़ा जाता है, तो आप लोग सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हो जाएं। हम इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई करेंगे, उनको बताएं कि हम भी एहतजाज करेंगे, हम आपके खिलाफ हार्ड लाइन लेंगे। तो अगर आपने हमारी हुकूमत को घर भेज दिया तो हम आपको एक्सपोज कर देंगे और हम बताएंगे कि हमें कैसे इस हुकूमत को, हमें ये हुकूमत के अंदर लाकर हमें फंसाया गया था और कैसे हमें जनाब ट्रैप किया गया था। तो इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं नवाज शरीफ की जानिब से। इमरान खान साहब ने GHQ के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया है, बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया गया है और इमरान खान की जानिब से तमाम कश्तियां जो हैं वो जला दी गई हैं कि किसी हुकूमत से बात नहीं होगी, अब बात होगी GHQ के सामने। या मैं कैसे कह रहा हूँ, ये क्यों कह रहा हूँ, ये बड़ा इस वक्त इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि सारे समझ रहे थे, हुकूमत समझ रही थी, इस्टेब्लिशमेंट समझ रही थी कि इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करेगा, वो सिर्फ रोज़ाना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है। तो उसने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और फिर ये समझ रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद में नहीं पहुँचेगा और ये इमरान खान पिंडी नहीं पहुँचेगा, वो हम पर चढ़ाई नहीं करेगा। तो आप याद रखिएगा कि इमरान खान इस्लामाबाद भी पहुँचेगा, कदम कदम पर इस्लामाबाद
में आपको नजर आ रही है। आप जरा बाहर निकलें इस्लाम आबाद में और आपको नजर आएगी कि हर जगह फौज नजर आ रही है, रेड जोन का एरिया बढ़ा दिया गया है। तो इमरान खान जो है वो इनको बहुत बड़ा अपसेट देगा और इमरान खान ने लगता यूं है कि इनको दौड़ा दौड़ा कर थका कर मारने का फैसला कर लिया है। दायरा जितना लेट वो पहुंचेंगे, उन्होंने कहा है कि वो 9-10 जो नवंबर है वो तब तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो वहां पर तैयारियां हो रही हैं, वहां पर परेड्स जारी हैं, वहां पर इमरान खान से निमटना कैसे, ट्रेनिंग जारी है फौज की, रेंजर्स की और पुलिस वालों की, लेकिन इमरान खान इनको थका रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, असद उमर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। आज उन्होंने रावलपिंडी में एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम डी चौक नहीं, हम अब की बार रावलपिंडी में आएंगे और हर जगह जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है कि हम रावलपिंडी में हर जगह जाएंगे और इमरान खान के प्लान का किसी को नहीं पता। यहां से एसाब की जंग शुरू होती है, यहां से असल जंग शुरू हो जाती है कि इमरान खान ने पहले यह ऐलान किया रखा है कि अब आपने ये फैसला कर रहे हैं मुल्क में जो इनकलाब है वो इलेक्शन के जरिए लाया जाए या फिर खून रेजी के जरिए। अब जो जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा मायने खेज है। उन्होंने कहा कि हम पिंडी में हर जगह जाएंगे, यानी कि पिंडी में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक बिल्डिंग है जिसको जीएसयू कहते हैं, जनरल हेडक्वार्टर है पाकिस्तान की आर्मी का। तो उनको उनकी जानिब एक बहुत बड़ा इशारा दिया गया है कि हम अब की बार डी चौक नहीं आ रहे, जो तैयारियां वहां पर कर रहे थे, हम अब की बार रावलपिंडी में आएंगे। यहां पर उनकी हुकूमत भी है और यहां पर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग भी है। तो जिनको पैगाम देना था उनको पैगाम दे दिया गया है। तो ये पाकिस्तान के इदारों के लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बनती चली जा रही है कि वो डायरेक्ट जीएचक्यू पहुंचने का ऐलान किया गया है। हालात कशीदा होते चले जा रहे हैं, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इस वक्त सवालिया निशान उठते चले जा रहे हैं और ये हंगामी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है इस्लामाबाद में फौज, रेंजर्स, एफसी के एहलकारों को कि मुल्क में नगानी सूरत हाल से निमटने के लिए वह हर वक्त तैयार रहें। आपको किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा ऑर्डर जारी किया जा सकता है। तो इस पर अब पाक फौज जो है वो क्या करने जा रही है, जनरल बाजवा ने कौन सा हंगामी अलर्ट जारी कर दिया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है, जिसने इस वक्त हलचल मचाई हुई है। और जीएचक्यू में क्या चल रहा है ये भी बहुत अहम है। नाज़रीन इकराम, नवंबर जो शुरू हो चुका है और 29 नवंबर को एक बहुत बड़ी तैनाती जो है वो होनी है, यानी कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। तो इस हवाले से जनरल बाजवा जो हैं वो ऑलरेडी ये ऐलान कर चुके हैं कि वो 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और नए आर्मी चीफ जो हैं वो जनाब अपना ओहदा संभाल लेंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, तारीख जो बताती है कि 1999 में भी ये सूरत हाल पैदा हो चुकी थी और उस वक्त भी नवंबर का महीना था, यही सूरत हाल थी। उस वक्त आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने जनाब पाकिस्तान में नवंबर के महीने में ही इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। तो बिल्कुल हालात जो है वो उसी जानिब जा रहे हैं, वही हालात बनते चले जा रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान में इमरजेंसी की बातें भी होना शुरू हो चुकी हैं। जनरल बाजवा ने एनडीयू में सहाफियों से मुलाकात की थी, उस मुलाकात में भी उन्होंने मार्शल लॉ का इशारा दिया था। दूसरा ये कि नवंबर की तैनाती, यानी कि अभी तक समरी मूव नहीं हो रही और समरी क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह चुके हैं, एक दिन पहले तो समरी मूव नहीं हो सकती, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट भी होती है, बहुत सारे नाम सामने आते हैं, वज़ीर आज़म ने सिलेक्शन भी करनी होती है, इंटरव्यूज तक भी बात जा सकती है। तो अभी तक नाम सामने नहीं आए, अभी तक वज़ीर आज़म के पास समरी नहीं पहुंची, तो उसका फैसला भी नहीं हो पा रहा है। तो इस सब के बाद अब जो मेरे ज़राए हैं वो तो ये बता रहे हैं कि 7 नवंबर तक नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा नए आर्मी चीफ की तैनाती का, लेकिन हालात तो ये बता रहे हैं कि किसी सूरत भी ये नोटिफिकेशन 7 नवंबर तक भी सामने नहीं आएगा। तो 10 से 15 लाख लोग इस्लामाबाद अगर पहुंच जाते हैं तो उसका ऐलान किया जा रहा है कि अगर 10 से 15 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं और हालात बेकाबू हो जाते हैं तो जनाब अहम फैसले कर लिए जाएंगे। तो इसी हवाले से हुकूमत के 5 वज़रा जो हैं वो यहां से दौड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, उन्होंने अपनी फैमिलीज को बाहर शिफ्ट कर दिया है और वो भी किसी वक्त पाकिस्तान से भाग सकते हैं, यहां से फरार हो सकते हैं। और यही बात नवाज शरीफ ने भी जनाब मरीम नवाज को लंदन इस वजह से बुला लिया था, उनको ये वाज़ेह तौर पर पता था कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है और नवाज शरीफ भी इसी हवाले से अपनी तगदू कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ऊंट जो है किस करवट बैठता है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाजमी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।